53 और स्टिल सिंगल। भाई करण जौहर ने अपने दिल की धड़क कह डाली धड़क 2 के लॉन्च पर। करण जौहर को इंटरनेट पर ढेर सारे फूल, ढेर सारा प्यार, लेकिन रियल लाइफ में करण जौहर है बिंदास और बेबाक। करण जौहर की लेटेस्ट फिल्म धड़क 2 का मुंबई में लॉन्च हुआ, जहां पर वो एक नई डायरेक्टर शादिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में हीरोइन है तृप्ति डिमरी, हीरो है सिद्धांत चतुर्वेदी। ये एक लव स्टोरी है लेकिन कुछ हटके। लेकिन इस मौके पर अपनी जिंदगी के बारे में करण ने किया एक खुलासा। क्या मैं कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जौहर। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माई फीट। वज़न कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ। तो मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहूँगा। पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, और सबके लिए और बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी है, बहुत सारी कहानियाँ दर्शानी है। तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सिंगल हूँ, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुन लें। धड़क 2 के लॉन्च के मौके पर काफी मूड पे थे और ढेर सारी बातें उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बोल डाली। देखिए, ये कैसी उम्र है मेरी, ना मरने की ना लड़ने की। ये मेरी जीने की उम्र है और मैं बस जीऊँगा। और अभी प्यार के लिए, लड़ने के लिए वो एनर्जी नहीं है। वो अभी हो गया जो होना था। अभी अभी आ जाए तो वेरी गुड, आई विल वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। नहीं आए तो केबीसी की तरह मेरे भी 4 ऑप्शंस हैं। भाई करण की जिंदगी में कोई आए ना आए, लेकिन उनकी फिल्म धड़क 2 में उन्होंने एक अनोखी लव स्टोरी बनाई है। तो धड़क 2 कितनी स्पेशल है करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के लिए? Dharma Productions quintessentially has always been, associated with a certain kind of cinema. Though I think time and again we have always tried to shake that up. We've always picked up themes and always presented them with utmost sensitivity. And that was also the need of the hour for Dharak 2. That of course we were picking up a theme thematically. That needed to be addressed. And the best way to address something or make a change is, I think, through art. And I believe cinema is such an impressionable medium that if we don't, who are in positions of storytelling and we are content creators, if we don't take up these themes and tell stories about them and do it, of course, in the mainstream because Dhadak 2 is a mainstream film. It's a mainstream intense love story, but it is saying something. And I have never ever been worried about repercussions, because that restricts you as an artist. And I feel agar pehle hi kadam mein main dar gaya, then so like the line it is, if you have a choice, so lado. And the best way is art. If you have to put a point across, it is through art. And I have to say, yes, we took a while to get to the cinema halls, but even the censor board was very understanding, very compassionate, and absolutely understood what we were trying to say through the film. They were protecting the sensitivity, we were protecting the sensitivity. So we worked very well, we understood their perspective, we respected their perspective. And yes, sometimes these things take time. It's not something that can happen overnight. And that's why there are processes in the censors that we must follow. They ask you to actually give the film in submission much earlier. हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज़ last minute हो जाती है. Last minute में आप भेजते हो, फिर last minute cuts आप नहीं डाल सकते, फिर आप उस हबड़ा बबड़ी में आप कट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि compromises हुए हैं. कोई compromise नहीं हुई है. My observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials. When they talk about Gen Z, you'll be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, an access to a certain amount of romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love, और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस generation का दिल टूटता है ना, वो किसी और generation का नहीं टूटा है.
सो अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप स्पॉटिफाई पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहाँ से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे होंगे। सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है और उसी में उनको कभी कभी खुशी भी मिल जाती है। Because I want to tell you there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था, मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते हैं। मेरी हर कहानी में जब मैंने जो दर्शाया है, वो एक चन्ना मेरे यहाँ मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है। गूंज उसकी बहुत बहुत ऊंची होती है, लेकिन खूबसूरत ज़रूर होता है। ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, because somewhere it is therapeutic as well. I love intense love stories. I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratified. क्योंकि जब आपका दिल टूटता और फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation. There is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle. And love is the only solution. I believe in love, and I said just now कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि प्रेम कहानी मेरी ज़िंदगी में आए। वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। इसीलिए वाइकेरियसली मैं फिल्मों के द्वारा, मैं उस मीडियम के द्वारा मैं एक्चुअली प्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हमारी जो मेरी अधूरी इश्क वाली कहानी है, वो सिनेमा द्वारा पूरी हो रही है। तो धड़क में भी एंड में मुझे लगा कि यार मुझे भी प्यार हो जाए, मेरा भी दिल टूटे फिर जुड़ जाए, और शायद मेरी प्रेम कहानी धड़क 3 हो जाए। प्रॉमिस करते हैं कि there will not be those leaks or there will not be those visual put out or like subtle lines about our film. I would love to share Dhadak and every Dharma production film way before its release. I think पहला कदम किसी फिल्म का जो है, उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है, वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ जगह दे। और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ी, एंड आई थिंक दैट जो शाजिया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को। जैसे कि आप जानते हैं, ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की, पेरियूरम पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाजिया ने बदले भी हैं, और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है। हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से, और जैसे मैंने कहा है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडेप्टेशन। तो ये थे करण जौहर, जो हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, और धड़क 2 के लॉन्च के मौके पर करण जौहर कुछ इसी एलिमेंट में नजर आए। उम्मीद है कि धड़क 2 लोगों को पसंद आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।